Today our topic of discussion is neurodegenerative disorders. आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कौन से हैं। तो न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स वो डिजीजेज होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूरॉन की जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और न्यूरॉन जो है वो लॉस हो जाता है। न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन इज द बेसिकली द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सी दो चीजें आती हैं? वन इज द ब्रेन एंड अदर वन इज द स्पाइनल कार्ड। द सेल which lines the brain and spinal cords are called neurons. So when the neurons are degenerated, then we will suffer from a certain type of diseases which we call neurodegenerative disorders. Now, what are the causes of the neurodegenerative disorders? There are multiple causes of neurodegenerative disorders, like genetic causes. There are certain genes which are in which the mutation occurs, and this will lead to the neurodegenerative disorder. The second one is the aging. As the age of a person is increasing, then their neurons will go towards the degeneration. The third one is the alcoholism, smoking, substance abuse. Those people who are doing smoking or any type of substance abuse, they will suffer from the neurodegenerative disorder. If there is some type of tumor in the brain, it will also lead to the degeneration of the neurons. And stroke is also one of the cause of degeneration of the neurons. Toxins, different types of the toxins formation in our body, like the free radicals formations, lipid peroxides, nitric peroxide. These also are the toxins which are formed due to inadequate metabolism in our body, and so these affects the neurons and make them degenerated. And there are some type of viruses which are also causes the degeneration of the neurons, like the HIV virus, human immunity deficiency virus. This causes the degeneration of the neurons. Similarly, there are the polyoma viruses. They also causes the degeneration of the neurons. And the last one is the idiopathic. There is no certain cause for the degeneration of the neurons. So these are the list of causes of the causes which leads to the degeneration of the neurons, and ultimately we suffer from the neurodegenerative disorders or disease. So now comes to the what are the disorders which occurs due to the degeneration of the neurons. So जो हमारे पास जो common disease हैं जो degeneration of the neuron की वजह से हो जाते हैं, तो first one is the Alzheimer's disease, Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis, हंटिंगटन डिजीज। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी डिजीज बन जाते हैं न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में। हमारे पास और भी डिजीज आते हैं जिसमें हमारे पास पिक डिजीज भी आ सकती है, एटिक्सिया भी आ सकता है। तो ये हमारे पास कुछ और भी डिसऑर्डर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये 4 डिजीज है। लेकिन इनमें जो है मोस्ट कॉमन जो है वो अल्जाइमर डिजीज है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर में आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये है हमारे पास नॉर्मल हिस्टोलॉजी, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, और ये जो है स्पाइनल कार्ड है। तो इनको जो सेल्स लाइक करते हैं इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इनमें जब डिजेनरेशन हो जाती है तो इसको हम कहेंगे कि द पेशेंट इज सफर फ्रॉम द न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो न्यूरॉन्स क्या चीज है? न्यूरॉन्स आर द बेसिकली द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स होते हैं। जिस तरह के हमारे बॉडी के अंदर और भी ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह के लीवर है उसमें हेपेटोसाइट्स होते हैं, इसी तरह हार्ट है उसमें कार्डिक मायोसाइट्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास स्किन है जिसकी लाइनिंग जो एपिथेलियम है वो स्किन है, स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसी तरह पेंक्रियास है जिसमें आपके पास बीटा सेल्स होते हैं, आइसोलेट सेल्स होते हैं। और तो ये इन सेल्स से जो फंक्शन होता है वो उसी ऑर्गन को मेंटेन करना होता है। द फंक्शन ऑफ दो सेल इज टू मेंटेन द
maintain the structure of that organ. और अगर इनमें डिजेनरेशन आ जाती है तो फिर हम जो है किसी डिजीज से सफर हो जाते हैं। तो कुछ सेल जो है वो अपने आप उसमें दे हैव द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस देमसेल्व्स, like hepatocytes can replace themselves, stem cells can replace themselves, but there are certain cells like neurons, they have the no capability of the regeneration, वो अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकते। जब वो एक दफा डिजेनरेट हो जाते हैं तो वो अपने आप को रिप्लेस नहीं करते हैं और फिर जो है वो हमेशा के लिए वो डिजेनरेट हो जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। Then we will suffer from the chronic diseases of the neurodegenerative disorder, like we have already elaborated them, like Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington disease, and amyotrophic lateral sclerosis, etc. So इन्हीं की वजह से हम फिर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिस तरह के इन द सीजन ऑफ द ऑटम द लीव्स फॉल फ्रॉम द branches of the tree. Similarly, when aging process or some toxins, the neuron lost from the brain, so it will not comes back and permanently the neuronal cells will be lost and the patient suffer from the neurodegenerative disorder. Now we will discuss a brief discussion of the one by one of the neurodegenerative disorders. The first one is the Alzheimer's disease. So what is the Alzheimer's disease? Alzheimer's disease is also a chronic irreversible disease of the brain cells. इसमें जो है हमारे पास जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो irreversibly लॉस हो जाते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो irreversibly लॉस हो जाते हैं and lead to the impairment of the intellectual functions. जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उससे वो जो है इसी इन न्यूरॉन्स लॉस की वजह से वो पेशेंट उसमें मुब्तला हो जाता है। और इंटेलेक्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं? इंटेलेक्चुअल फंक्शन वो होते हैं जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन आपके आते हैं, उसकी जो इसकी जो रिमेंबर मेमोरी की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। इसी तरह ही कांट एबिलिटी टू रीजन, ही कांट एबिलिटी टू रन, to learn, he have no ability to imagine the things. तो उसमें जो है जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन के साथ जो चीजें रिलेट होती हैं वो उसमें लॉस हो जाती हैं, तो जिसको कॉमनली हम टर्म बोलते हैं डिमेंशिया। तो मोस्टली जो है वो अल्जाइमर डिजीज के जो पेशेंट्स हैं वो डिमेंशिया में मुब्तला होते हैं। द पेशेंट्स ऑफ द अल्जाइमर डिजीज आर सफर्ड फ्रॉम द डिमेंशिया। So Alzheimer's disease is the chronic irreversible disease of the neuronal loss in the brainstem, and the patient lead to the loss of the intellectual function. So this was the brief definition of the Alzheimer's disease. This is the picture where you can compare both the normal brain and the abnormal brain. Here you can see the normal architecture and normal structure of the brain, in which you can easily describe, easily you can imagine the sulci gyri of the brain stem of the brain. But in the case of the here in this picture, you can see the brain is shrink and it become atrophied, and the sulci and gyri both are lost. So these are the abnormal. This is the abnormal brain, and this one is the abnormal brain, and the brain become atrophic. So in the case of the Alzheimer's disease, the brain become atrophic. Now these are the particles, aggregates which are formed in the Alzheimer's disease. इनमें जो है ये कुछ abnormal particles होते हैं जो अल्जाइमर डिजीज के न्यूरॉन्स में अकोमोडेट करते हैं। इनको रिमेंबर करने के लिए जो है इसमें अगर आपको कुछ याद हो और कुछ याद ना भी हो और एक दो अगर आपको याद हो इस लेवल पे, तो दिस विल बी इनफ फॉर यू। सो दीज आर द न्यूरोटिक प्लेक्स, न्यूरोफिब्रिलरी टिंगल्स, हेरानो बॉडीज, सेरिब्रल एम्लाइड एंजियोपैथी, ग्रेनुलोविक्यूलर डिजेनरेशन। सो ये प्लेक्स हैं, टिंगल्स हैं, फिलामेंट्स हैं जो डिजेनरेशन की वजह से जो है वो न्यूरॉन्स में जमा हो जाते हैं और इनको फिर
वो डिफरेंट, इनको रिमेम्बर करने के लिए वो डिफरेंट नाम दिए गए हैं। और फिर वो जो जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिस तरह के न्यूरोटिक प्लेक्स हैं, न्यूरोफिब्रिलेटिंग टिंगल्स हैं, बॉडीज हैं, तो इन ही के जो आर्किटेक्चर की वजह से इनको ये अपने अपने नाम दिए गए हैं। तो इनमें से अगर आपको एक दो याद हो इस लेवल पे तो ये आपके लिए इनफ है। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ दोज एग्रीगेट्स व्हिच आर फॉर्म इन द अल्जाइमर डिजीज। ये देखें, दिस इज द न्यूरोफिब्रिलेटिंग टिंगल। इसमें जो है फिलामेंटस अपीयरेंस ऑफ द न्यूरॉन का हो जाता है। न्यूरॉन जो है वो एक फिलामेंट्स का अपीयरेंस देता है, हेयर लाइक उसकी प्रोजेक्शन बन जाती है। देखें, या ये न्यूरॉन है और इसका जो है वो इलांगेटेड शेप उसने ले लिया है। दिस इज कॉल्ड न्यूरोफिब्रिलेटिंग टिंगल। और ये देखें, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका जो फिलामेंट बन रहा है, और ये जो आपको गोल गोल से नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली आर द न्यूरोटिक प्लेक्स। So this was all about the Alzheimer disease. Now the second one is the Parkinson's disease. Parkinson's disease is also a neurodegenerative disorder. This is characterized by the three cardinal features. Number one is the rigidity, bradykinesia, tremors and postural instability. तो पार्किंसन डिजीज जो है उसमें हमारे पास 4 कार्डिनल फीचर्स आएंगे। उसमें एक रिजिडिटी आएगी जिसमें टाइटनेस ऑफ द मसल आएगा। ब्रेडिकेंसिया जो है उसमें स्लो मूवमेंट ऑफ द मसल्स, और ट्रेमर जो है उसमें इनवॉलेंट्री रिथमिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, जो आप उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और पोस्चर इंस्टेबिलिटी, उसका जो गेट है, उसका जो चाल चलन है वो चेंज हो जाता है, वो एक टिपिकल शेप ले लेता है, जिसको आगे इसमें एक पिक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो दीज आर द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज। और पार्किंसन डिजीज जो है, दिस इज द न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड ब्रेनस्टेम। जो न्यूरॉन्स बेसल गैंग्लिया और ब्रेनस्टेम को लाई करते हैं, तो वहां पे जो है उनमें डिजेनरेशन हो जाती है। तो उन्हीं डिजेनरेशन की वजह से जो डिजीज हमारे पास बन जाती है उसको हम कहेंगे दिस इज द पार्किंसन डिजीज। तो ये देखें, इसमें जो है आपको जो पोस्टरल पोजीशन बन जाता है पार्किंसन में, तो इसी तरह का पोस्टरल पोजीशन बन जाता है। और उसमें जो है आपके पास ये इसमें ट्रेमर्स आएंगे, जो वो उसके हाथ मूवमेंट्स करेंगे, जो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसी तरह उसका जो गेट है, जो उसका चाल चलन है, वो चेंज हो जाता है। और ब्रेडिकेंसिया में उसके जो मूवमेंट है ऑफ द मसल्स है, उसके जो हाथ पैर का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। और उसके अलावा जो है उसमें रिजिडिटी आएगी, और उसमें उसके मसल्स में टाइटनेस आएगी। ये इसकी फीचर्स हैं पार्किंसन डिजीज के। अब पार्किंसन डिजीज में जो न्यूरॉन के साथ क्या हो जाता है, उसमें जो सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो पेल हो जाएगा, जो आपको नेकेड आई से नजर आएगा। अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिकली यानी आप नेकेड आई से देखना चाहें, वहां से अगर कोई सब्सटेंशिया निग्रा को रिमूव कर लेता है तो वहां पे आपको पेल नजर आएगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोप के लिए आप उसमें लॉस ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उसमें डोपामिन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसमें लॉस हो जाते हैं इन पार्किंसन डिजीज। और थर्ड वन में इसमें लीवी बॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो है आप लोगों की इस लेवल पे इनको अगर इसमें आपको एक दो याद हो तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, और अगर सारे याद हो तो फिर आपके लिए ये अच्छा है, बट अगर उसमें आपको एक दो याद हो तो दिस इज विल बी इनफ फॉर यू। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें जो आपको लीवी बॉडीज, तो दिस वन इज द लीवी बॉडीज व्हिच आर फॉर्म इन द पार्किंसन डिजीज। देखें, इसमें पार्किंसन डिजीज, ये इसमें स्पेशल स्टेन क्या है, सिल्वर स्टेन क्या है, तो इसमें और जो है उसने मॉडिफाई किया है कि किस तरह जो है हमारे पास लीवी बॉडी नजर आती है। तो दिस इज द लीवी बॉडी इन द केस ऑफ द पार्किंसन डिजीज। थर्ड नंबर पे हमारे पास न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर जो है वो एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। तो एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस is the type of the neurodegenerative disorders in which the neurons which line the spinal cord in brain are lost. तो उसमें जो न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को लाई करते हैं, दोनों पे होते हैं, तो वहां से वो लास्ट हो जाते हैं, उनकी डिजेनरेशन हो जाती है। तो उनकी डिजेनरेशन की वजह से हमारे पास जो डिजीज बनेगी उसको हम कहेंगे एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो मोस्टली जो है जो हमारे पास आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, स्पाइनल स्ट्रेक का पाथवे पढ़ा होगा, तो इसमें जो अपर मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, तो वहां पे जो न्यूरॉनल सेल्स होते हैं उसमें वो लॉस हो जाते हैं। तो जब वो लॉस हो जाएंगे
तो उसमें उसमें मूवमेंट के डिसऑर्डर आएंगे, वो उसमें जो उसका जो चलना फिरना होगा, उसका जो वॉकिंग का जो स्टाइल होगा वो इफेक्ट होगा, तो उसका जो मसल का जो कंट्रोल मूवमेंट है वो लॉस हो जाएंगे। तो इसमें जो फीचर्स आएंगे, तो इसमें मसल की वीकनेस आएंगी, स्पेशली आर्म्स और लेग्स की, और इसी तरह उसको डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलविंग होगी, प्रॉब्लम्स इन द ब्रीथिंग होगी, ट्विचिंग होगी, क्रैम्प्स इन द मसल्स होंगे। तो ये इसके फीचर्स होंगे जिससे वो प्रेजेंट करेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा हंटिंगटन डिजीज। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें कार्डियक न्यूक्लियस की श्रिंक हो जाती है, वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर कार्डियक न्यूक्लियस होता है, तो वो उसकी श्रिंकेज हो जाती है। जब उसकी श्रिंक हो जाती है तो उससे जो डिजीज बनेगा उसको हम कहेंगे हंटिंगटन डिजीज। तो इसमें मोस्टली कार्डियक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। दिस इज आल्सो characterized by the movement disorder and dementia। इसमें भी पेशेंट जो है वो डिमेंशिया में चला जाता है, वो मेमोरी को रिटेन नहीं कर सकता और उसमें मूवमेंट डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और उसमें जो मोस्ट कॉमनली जीन इन्वॉल्व होता है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, उसको हम कहते हैं हंटिंगटन जीन और HD जीन। तो ये जो है हमारे पास कुछ न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर थे, तो उसको हमने ब्रीफ डिस्कशन दे दी। तो थैंक यू।